ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜੜਿਆ ਮਾਏ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਆਏ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕਹਿੜਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਬਾਲਕ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਲਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਭਾਏਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਆਪ ਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦ ਅਗੰਗੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕ ਰੰਗ ਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਦਾਸ ਵਰਨਾ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਕਥ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਪੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਜੀ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ, 3 ਦਾਤਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਆਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਆਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਤੇ ਆਹ ਕਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
हर राय जी गुरु हरगोबिंद साहब जी के पोतरे सन। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी कहन लगे, ये समा आवेगा तेरा पुत्र भी गुरता गद्दी ते विराजमान होगा, समा आवेगा तेरे घर पोतरा आवेगा और एडा बड़ा योद्धा महाबली सूरमा होएगा। मात नानकी जी समझ गए कि मेरा पुत्र तेग बहादुर गुरता गद्दी ते विराजमान होंगे। और अज जिहड़ा आपां गुरपुरब मना रहे हैं ना, मात नानकी जी सत्कार जो मात गुजरी जी, मामा कृपाल चंद जी, भाई मेहर चंद जी, भाई दयाला जी, सारा परिवार पटना शहर की पावन धरती ते पहुंच गए। गुरु तेग बहादुर साहब जी परिवार को छड्ड के ढाके असम वाले पासे जा रहे हैं। 6 महीने बतीत गए ने। जिहड़ा अकाल का सुत है, जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु नूं अपना पुत्र बना के भेज रहा है। मात गुजरी दी कुख नूं 6 महीने हो गए। कुख भागां वाली हरी भरी हुई है। इत्थे गुरु सवारे हो ऐसा योद्धा महाबली सूरमा जिस ग्रह प्रगट होना है, उन्हां दी सिमरन, उन्हां दी आराधना बहुत वड्डी है। बचित्र नाटक दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आप वो वचन लिखे ने, ताज मात मोर अलख आराधा, बहु विद जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भये प्रसन्न गुरुदेवा। अलख जिहड़ा लखिया नहीं जा सकता। मेरे माता जी ने, मेरे पिता जी ने उस अलख की अकाल पुरख परमात्मा की आराधना की ते अकाल पुरख परमात्मा इन्ना प्रसन्न होया कि जिस जगह मैं अकाल का सुत पुत्र बाला प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी आप कथा लिखदे हुए ये वचन करते हैं कि उस जगह अकाल पुरख परमात्मा दे नाल साडी सुरती जुड़ी हुई सी ते अकाल पुरख परमात्मा ने मेरे नाल वचन कीता है, मेरे नाल गल्लां कीतियां ने। रब दे प्यारियां दे नाल वो आप अकाल पुरख परमात्मा गल्लां करता है, जिहड़े परमात्मा दे विच ओत-पोत हो गए ने, अभेद हो गए। गुरबाणी दे विचों वचन हन कि नामदेव जी भगत जी जिहड़े अगों कह रहे ने कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो राम अकाल पुरख करता है वही होता है। ते अकाल पुरख अपने भगत की जो रखिया करता है ते वचन करते ने, कहे तां धरण अकौगी करो, कहे तां लेकर ऊपर धरो, कहे तां मुई गऊ देव जिवाए, सब कोई देखे पति आए। ये कौन कह रहा? भगत नामदेव जी कहते मैनू मेरा राम परमात्मा कह रहा, कह रहे कि जो तेरे नाल ये वधीकी कर रहे ने ना, आखिर तां धरती मैं उल्टी कर लवां कि जे कहे तां ये मरी हुई गवां नूं मैं जवाब देवां। जिन्ने वेखदे ने ये सारे हैरान हो जाते, पर रब दा भगत जिहड़ा है वो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता। करना जे उन्हें करना होया तो सब कुछ कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मेरी बांधी भगत छडावै, बांधे भगत न छूटै मोहे,
एक समय मोको गह बंद है, कौ फुन मो पै जवाब ना होए। अकाल पुरख परमात्मा कहता मेरी बंदी भगत छुड़ावे। मेरा बनिया होया भगत जिहड़ा है वो विकारां वालों खलासी पा सकता है, अपने आप को छुड़ सकता है। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे मोहे। पर परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु कहता कि जे मैनू मेरा भगत बन लवे तो मैं उनका छुटिया छुट नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है। जे मैनू अपना मेरा भगत मैनू बन लवे, अपने वस कर लवे। ये तो बचन आप सुनते, तू भगतां कै वस भगतां ताण तेरा। वो परमात्मा अकाल पुरख भगतां दे वस है। इसी तरह ही धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी कथा लिखते हैं कि उत्थे वचन है, मैं अपना सुत तोहे निवाजा। सुत कहते पुत्र। अकाल पुरख परमात्मा कहता मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार में तोर रहा। ते ग्रह भी उसे प्रगट होना है कि जिथे गुरु नानक देव जी महाराज जी के 9वीं जोत भाव गुरु तेग बहादुर साहब जी के ग्रह विखे तुसी प्रगट होना है। जाके उन्होंने सिमरन, उन्होंने आराधना। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचर करबे को साजा। साडे वास्ते तोरिया पंथ का प्रचार करने वास्ते। केड़े पंथ का? जेड़ा पंथ धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जिस पंथ का प्रचार किया। कई बार साडे मन में ख्याल आता है कि इन्ना समा गुरु नानक देव जी ने प्रचार किया, फिर दूसरे गुरु साहिबाना ने प्रचार किया, बाणी उन्होंने मुखार बिंद तो आई, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को अकाल पुरख ने किहड़े पंथ प्रचार करने वास्ते तोरिया? कोई वखरा पंथ सी नहीं। गुरु सवारी ओहे पंथ, ओहे गुरु साहिब जी की जोत है। शरीर बदलते रहेंगे, जोत ओहा जोत साए सहकाया फिर पलटी। गुरु नानक देव जी महाराज जी के 10वें स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो जोत देकर काया शरीर बदले। इस वास्ते जो भाई साहब भाई गुरदास जी वचन करते हैं, मारिया सिखा जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। उस निर्मल पंथ कह लगे कि पंथ का प्रचार करना है, इस वास्ते तेनों संसार दे विच अपना पुत्र बना के भेज रहे हैं। ते गुरु सवारे सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल दे ये वचन सुन के खड़े हो गए। ठांड भयो मैं जोर कर, वचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। अपने आप कुछ भी गुरु साहिबाना ने नहीं किया, अकाल पुरख परमात्मा ने कराया। अपने आप जो ये धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का इतना बड़ा खजाना, गुणा का सागर, गुणा के समुंदर, ये शुभ गुण जिस बाबत सतगुरु जी ने अपने वचन हैं, हम धनवंत भागत सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। पियो दाते का खोल दिठा खजाना, ता मेरा मन भया निराना। रतन लाल जाका कशु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट ना आवे वध हो जाई। ये ऐसा खजाना है, नाम का भंडार है, गुणा का सागर है। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी आप कथा बचित्र नाटक की बाणी पढ़ोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਮੁਰਪਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੀਰ ਧੁਨਾਨਾ।
जब ही जात त्रिवैणी भये पुन दान दिन करत बिताए तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर तिखे पव गयो। पटना शहर गुरु सवारियो केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने प्रकाश होया। इस तो पहला जगत गुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज जिथे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रकाश होया अवतार धारण किया, उत्थे पहला चरण पाए ने गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी महाराज जो उत्थे जाते ने ते सालसराय जौहरी जिले ग्रह ठहरते, जौहरी जेड़ा रत्ना का पानक हारी सारी जेड़े रत्न है ना उन्होंने कोई परख नहीं सकता कि की इहदी कीमत है, मुल की है। भाई मरदाने नूं तोरिया भी जाओ इहदा मुल पा के आओ, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया, किसी ने मठियाई। तुरद्या तुरद्या भाई मरदाना जी सालसराय की दुकान से चले जाते, जौहरी की दुकान से। वो रतन वेख के कहता इसकी कीमत ही कोई नहीं, मैं इसकी कीमत दे नहीं सकता, ये बड़ा अमुल्क है। ये दर्शन भेट ही जी है 100 रुपया है, ये वेखना है। मैं इस गल नजराना दवागा 100 रुपया। 100 रुपया लैके गुरु नानक देव जी के पास आए, क्योंकि कहानी ये सी कि भाई मरदाने जी ने कहा कि सतगुरु जी ये मनुखा जन्म जेड़ा बड़ा दुर्लभ है, असी कहने बड़ा अमोलक है, पर ये दुनिया ये मनुख जेड़े ने अपने मनुखा जन्म नूं समझते नहीं। समझेगा तो वही जेड़ा गुरु सवारी गुरु जी के वचनों हुक्मां नूं पढ़िया होवेगा जां बाणी पढ़ी होवेगी जां जेड़ा गुरु चरनां दे विच रिहा। हुण भाई मरदाना जी ने सवाल कर दिता कि सतगुरु जी इन्ना कीमती दुर्लभ मनुखा जन्म है ते लोग इवें अजाई गवाई जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे है दुर्लभ है, रत्ना वर्गा बड़ा अमुल्क है। भगत कबीर जी वचन करते कबीर मानस धर्म दुर्लभ है, होए ना बारह बार, ज्यों बल फल पाके भोए गिरा बहुत ना लागे डाल। जो गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी की किसी ने बाणी पढ़ी होगी गुरमुख प्यारे तो उन्होंने पता होगा ना कितना ये मनुखा जन्म दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं। इस वास्ते जदों वो 100 रुपया लैके गुरु नानक देव जी के कोल गए तो गुरु नानक देव जी ने क्या कि ये नजराना दिता है जी। सालसराय जौहरी जी मैं दुकान पर गया सी ते उन्होंने कहा जी बेटा इसकी कीमत नहीं दे सकता, मेरे को इन्ना पैसा नहीं है, ये बहुत कीमती है। तो यदा 100 रुपया नजराना है दर्शन वेखण वाले गए। गुरु नानक पातशाह जी कहते नहीं भाई उन्होंने वापस दे गया। वो कहे जी मैं हूँ लै नहीं सकता। इतिहास में लिखा है फिर सालसराय आप गुरु चरणों में आए, जिथे वो रतना के परख जौहरी सी उत्थे गुरु रतन भी उन्हें सतगुरु जी ने परख लिया कि ये महापुरुष है, ये अकाल पुरख का आप स्वरूप है। सतगुरां के चरणों के ढह पिया दर्शन किए ते जेड़ा गुरु नानक देव जी महाराज जी ने वचन किया उन्होंने सत करके उन्हें मनिया, क्योंकि सालसराय का जेड़ा नौकर सी उसका नाम आया अगरका। सतगुरु महाराज जी ने उसको भी ऐसा आनंद बख्शिया कि वो भी सतगुरु जी के चरणों का भौरा बन गया दर्शन करके। सालसराय जौहरी ने बेनती की गुरु साहब जी कुछ समा होर ठहरो, असी दिल नहीं करना तुहानूं विदा करने वास्ते। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे भाई हुण तुसीं इस जगह पे
सुंदर धर्मशाला तैयार करो, 2 वक्त उस अकाल पुरख की पूजा करो। जिथे जिथे भी गुरु नानक देव जी गए ये उन्होंने बचन हर थां किया है। भाई गुरदास जी 12 में बचन करके जिथे बाबा पैर करे पूजा आसन थापन सोआ। ते नाल ही जिहड़ा सालसराय जावी दा नौकर सी उन्होंने सतगुरु जी ने गुरसिੱਖੀ बख्शी, प्रचारक थापिया, मंजी बख्शी और सालसराय नूं कहा कि ये हुण प्रचार करेगा, इत्थे धर्मशाला बनाओ। ते नाल गुरु साहिब जी महाराज जी ने कहा कि असीं दोबारा आवांगे, पर उदों असीं लंबा समा रुकांगे। तू तंग करके नहीं देखेगा, तेरी कुल दे विचों, तेरी अंश वंश दे विचों वो वेखणगे, तू नहीं होवेगा। असीं 10वें जामे विच इत्थे आवांगे, प्रगट होवांगे, आवांगे नहीं प्रगट होवांगे। और सच है ये है अंतरजामी गुरु नानक देव जी महाराज के गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी, इन्हां तो बाद बाला प्रीतम जिन्हां दा प्रकाश हुंदा उस स्थान ते प्रगट होंदे ने। कहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर दिखे पावनाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आसाम अज दे दिन पोह सुदी सप्तमी विक्रमी 1723 सन 1666 22 दिसंबर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश होता है। जिस दिन अमृत वेले प्रकाश होता है, सारी रात ढाके की धरती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आराम नहीं किया, चौकड़ा मारिया और उस अकाल पुरख परमात्मा का जिहड़ा सुत है पुत्र जिहने घर दे विच प्रगट होना है, उस अकाल पुरख की सिफ सलाह कर रहे हैं। चौकड़ा मार के सारी रात लंघ गई है। गुरु तेग बहादुर साहब जी अमृत वेला होया, इधर बाला प्रीतम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश होता है, उधर सतगुरु जी मुस्कुराते ने, हसते ने। नाल दे सिखां ने पूछया कि सतगुरु जी बेनती है, सारी रात तुसीं आराम नहीं कीता, असीं तुहानूं कह भी नहीं पाए ते तुसीं हुण मुस्कुराए जो हसे हो, की कारण है? कहण लगे पटने की धरती ते साडे ग्रह वो योधा महाबली सूरमा जिहदे वास्ते असीं सारी रात परमात्मा के चरणों में आराधना की है, उन्होंने याद किया है। वो सुत अकाल का सुत जिहड़ा है वो साडे ग्रह आ गया है। वो वखरी गल है। भाई मेहर चंद जी गुरु के सिख पटने तो जाके सतगुरु जी को खबर देते थे, पर इतिहासकारों ने लिखा है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जो पटना साहब को ढाके को जाते हैं तो परिवार को पहला ही कह जाते हैं कि साडे घर ऐसा वो महाबली योधा सूरमा बालक पैदा होगा, प्रकट होगा, प्रकाश होगा। उस बालक का नाम रखना है गोबिंद राय। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बाला प्रीतम के रूप में पटना शहर विखे पग लियो। एक नहीं अनेकों प्राणियों अपने दर्शन दे के, जो बड़े लंबे समय तो राम की उपासना करता सी, कोई बड़े लंबे समय तो अपने ग्रह अपने घर के विच सब कुछ होने के बावजूद संतान नहीं सी ते ओदे वास्ते याचना करते सन। चेहरे जिहड़े मुरझाए हुए सन, उन्हां दे ग्रह विखे ऐसे भाग ला के मां कह के पुत्र बन के उन्हां दे पुत्र की जिहड़ी लालसा सी वो बाला प्रीतम ने खत्म कर दी। पंडित शिव दत्त जी जिहदी 80 साल तो उम्र वध है, राम की पूजा करता है। राम की पूजा नहीं करता, ओदी पूजा करते हैं अगे लोग जिहड़े
कोई भी कर्म करते हैं पंडित शिवदत्त जी को पुछते हैं, सियाणा है सूझवान है, गंगा के किनारे निदा प्रति राम की उपासना करनी और उथों के रहन वाले जोड़े लोग सन उन्होंने पुछ के काम करते सन, वो अरदासा बेनतियां करवाते सन। बड़ा सियाणा सी, बड़ा सुलझिया होया सी। बाला प्रीतम इतिहास दसदा है कि 4 साल की अजे उम्र है ते सतगुरु महाराज जी गंगा के किनारे जाते हैं। वो पंडित जिहड़ा राम की पूजा करता है मड़कड़े मड़के जाके उसकी पिठ को थापड़ा देने, फिर मोटिया को हिलाते हैं, फिर अपने छोटे छोटे निके निके पावल हाथों ओदियां अखां रख के बंद करते हैं ते कंन दे विच कहंदे बाबा जी झात, जिवें आपां कोई किसी दी अखां बंद करके पुछीए मैं कौन हाँ, ते बाला प्रीतम जी इदां करदे कहंदे बाबा जी झात। जदों इस तरह की मिठी सोहनी आवाज़ सुन के ते पिछे नूं देखते हैं कि किहड़ा है जिहड़ा मैनूं अज बाबा जी कह रहा, मैनूं तां पंडित जी कहते सन, जिन्हें कहना पंडित जी, और बाबा जी जिहड़ा क्या है कौन है, देखिया मेरा बाला प्रीतम है। बस जिस दिन तो बाला प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने उस पंडित शिवदत्त जी ने दर्शन कर ले, राम की उपासना करनी वो भुल गया, राम की पूजा छड़ दी, हुण नेता प्रति बाला प्रीतम को याद करता। इत्थे ही बस नहीं, एक दिन की होया, पंडित जी पटना साहब के विच दी जा रहे ने, राजा फतेह चंद मैणी के घर के अग्यों दी लंघे ने। राजा फतेह चंद मैणी सालसराय जिहड़ा जौहरी सी ओहदी अंश विचों सी, ओहदी कुल विचों सी, ओही घर ओही ग्रह। पंडित शिवदत्त जी को आवाज मारी, पंडित जी घर आओ, बुलाया। पंडित जी उन्होंने चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के पुछण लग पे, ਤੁਹਾਡੇ चेहरिਆਂ ਨੂੰ की होया, मुरझाए है, निशी है, की कारण है? कहने लगे पंडित जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है चेहरे क्यों मुरझाए ने। जिस घर के विच धन होवे, पदार्थ होण, सब कुछ होवे, सारियां सुख सहूलतां होण, पर उस घर के विच पुत्र ना होवे ते तुसीं जानते हो ਉਹਦਾ चेहरा मुरझाया ही होगा। साडे वास्ते बेनती है कि तुसीं राम की पूजा करते हो, साडी भी ਉਹਦੇ अगे अज बेनती लाओ, साडी भी अरदास करो, साडे घर कोई पुत्र पैदा होवे, साडे घर औलाद नहीं। बस इस करके पंडित शिवदत्त जी ने कोई अरदास नहीं की। जिस दिन तो बाला प्रीतम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के दर्शन कर ले ना, उस दिन तो जेड़ा भी कोई उन्होंने कहता सी ना कि साडी अरदास करो, नहीं सी करती। मैं किहदे अगे अरदास करूं? वो दसदे सन कि अरदास मैं किहदे अगे करा। राजा फतेह चंद मैणी नूं कहा भी जिहदे अगे अरदास करदी वो पटना शहर दे विच ही रहिंदे ने। कहंदे कौन? कहते बाला प्रीतम। गुरु तेग बहादुर साहब जी के ग्रह जिन्हां दा प्रकाश होया है, उन्हां दे दर्शन करो, उन्हां नूं याद करो। याद करोगे तो तुहाडे ग्रह वो जरूर आउणगे, तुहाडे घर नूं भाग लगणगे। तुसीं याद करके देखो। बस इन्नी गल कह गया। राणी बाला प्रीतम नूं याद कर लग। जदों बाला प्रीतम नूं याद किया, समा आया, इतिहास दसदा है कि नाल दे साथियां नाल खेडदियां होया बाला प्रीतम धन गुरु गोबिंद सिंह जी जिवें सिद्धो खूंटी खेड खेडी गेंद नाल खेडदियां खेडदियां गेंद जिहड़ी है ਉਹਦੇ घर चलेगी रानी दी। ये तो एक बहाना है, गेंद घर चले गई, गेंद लैन गए। जे गेंद लैन गए होंदे बाला प्रीतम ते गुरु सवारी वो गेंद लैके वापस आ जाना सी। जेड़े बाला प्रीतम नूं याद करते सन गेंद वाले पासे नहीं गए, जिथे राणी नेत्र मुंद ने बंद कीते ने ते बैठी है। बाला प्रीतम झटपट ओदी गोद विच बैठ गए ते कहंदे मां मैं आ गया।
बस मां कहण दी देर सी, अखां खोलियां, कहती केड़ा है जिसने अज मैनू मां किया। फिर क्या कि ये तो वही है जिहदे बारे पंडित जी दस गए सन भी याद करोगे तो घर आवेगा। कहते मेरा बाला प्रीतम, कहते हाँ मां। छोले पूड़ियां नाल आप खाधियां, नाल जेहड़े अपने नाल दे हाड़ी सन उन्हां नूं खवाइयां, कह के कि मां मैं छोले पूड़ियां खाणी। और उत्थे इतिहासकारां ने लिखिया है मां दो ते पुत्र एक, ये किवें हो सकदा है। बाला प्रीतम जी कहण लगे अखां दो ने जोत एक है। पूर्णमासी ते चंद्रमा दी जेड़ा चांदनी है ओदियां जेड़ियां किरणां ने वो चंद्रमा जेड़ा है वो समुद्र दे विच भी वो झील दे विच भी एक है ते दिखाई दिंदा है। इसे तरह मां तू फिक्र ना करी, मैं एक वेले तेरी गोद विच खेडांगा ते एक वेले अपनी मां मात गुजरी दी गोद विच खेडांगा। वो सच है जो मां किया ते पुत्र बनाया रानी ने बाला प्रीतम नूं, ते मां दी ओ जिहड़ी लालसा सी पुत्र बनदी ओ खत्म हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी पटना शहर एक नहीं अनेका ही ऐसे चोज सतगुरु जी ने कीते, अनेका ही प्राणियों को सीधे रस्ते पाया। छोटी उम्र करके ना वेखना, ये गुरु नानक पातशाह महाराज जी जे दरों घरों वरसाए गुरु तेग बहादुर साहब जी गुरु नानक जी के 9वें स्वरूप के पुत्र ते अकाल के सुख सन, परमात्मा के सुख सन, भेजिया ये वास्ते। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को पता लगता है केड़ा है गुरु सवारे जिहदे घर अज पुत्र पैदा होवे, घर जन्म लिया होवे, ते भावें वो कितनी दूर होवे उहदा मन करता है उन्हां दवा दव छुट्टी लैके अपने घर जावां, अपने पुत्र नूं देखां। गुरु तेग बहादुर साहब जी आए नहीं। 5 साल बाद विद्वाना ने लिखा, कोई 4 साल लिखता, 5 साल बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पटना शहर होते हैं, जिथे बाला प्रीतम जिथे सतगुरु जी का परिवार है सीधा उत्थे नहीं पहुंचते। बाहर एक बाग है नवाब रहीम बख्श ने करीम बख्श का, जिन्होंने दर्शन किए होंगे पता होगा। दास अजे पटना साहब के दर्शन नहीं किए, जिन्ना चਿਰ ना इतिहास तां ही सुनाया जाता जिस जिस स्थाना के आप खुद जाके दर्शन किए होने, फिर उतों का पता होता है। और मन के लालसा ये जरूर रखनी चाहिए है कि जिस स्थान से गुरु साहिबाना के चरण पाए ने एक बार जरूर उत्थे दर्शन करके आना चाहिए। पटना शहर रहीम बख्श करीम बख्श का जिहड़ा बाग सी, जिथे हुण गुरुद्वारा है गुरु का बाग, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उत्थे जाके उहदे बाग दे विच चरण पाए। इतिहासकार लिखते हैं कि वह बाग जिहड़ा सी सुक्का होया सी ते सतगुरां दे चरण पाए। बाला प्रीतम ते परिवार उस बाग दे विच जाके अपने पिता गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के दर्शन करते हैं, चरनां ते नमस्कार करते हैं। वो बाग जिहड़ा सी फिर हरिया भरिया हो गया, गुरु जी ने चरण पाए। ये सच है, बाणी का भी वचन है, सात धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भई हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। जंत तो भाव मनुख, जिन्हां मनुखा ने जाके सतगुरां दे दर्शन किए उन्हां दे मन के अंदर खेड़ा आ गया। जिस दिन गुरु सवारे बाला प्रीतम जी का प्रकाश होता है ते एक सैयद पीर भीखन शाह जो हरियाणे दे विच ठसका नगर दे विच रहन वाले सन, और वो खुदा की बंदगी करने वाला, रब की बंदगी करने वाला, खुदा को सिजदे करने वाला
ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਬਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, 2 ਕੁਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੁਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਢੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਕੋਈ ਪੰਥ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਆਗਿਆ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਤਦੇ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਿਵਦੱਤ ਜੀ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼,
राजा फतेह चंद मैनी राणी होर बेअंत ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇਸ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੱਕ ਆਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਨ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹੀ ਵਸਨੀਕ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਰਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਝੱਟਪੱਟ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਘੋੜਾ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝਾਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝਾਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਪੰਡਤ ਸੇਵਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने हाथ पकड़ लाए, नमस्कार चरना ते नहीं झुकन दिता। कहन लगे सतगुरु जी, मां पुत्रां दे पैरां दे हाथ नहीं लाईदे। मां दा हाथ जिहड़ा है वो पुत्र दे सिर दे उपर हुंदा है। मां ने राणी ने कुट के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं जफी पा ली, गलोखड़ी विच लै लिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रोपड़ तो आनंदपुर साहिब ये सारी संगत नूं लैके जाते ने। पुरब आउंदा है, बड़ी श्रद्धा भाव नाल हज़ारां लखां दी तादाद विच गुरु दीआं प्यारियां सिख संगतां सतगुरां दे बचन उपदेश सरवण करदियां हन। कुछ दिन रह के राजा फतेह चंद मैणी कहण लगा, सतगुरु जी सानूं आग्या दओ, असीं हुण अपने वापस नगर नूं जाइए, शहर नूं जाइए। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपनी मां राणी नूं कहा, मां अगे तैनूं असीं पटना शहर दे विच उत्थे कह के आए सन कि जदों भी तूं साडे दर्शन करने ने ते उस वेले छोले पूड़ियां बना के मेरे नाल दे हाड़ियां नूं ये प्रसाद वरताउणा ते असीं उहदे विच बैठ के हाजिर नाजिर हो के छकिया करांगे। हुण तुहानूं कह रहे हैं कि शब्द गुरु दे नाल जुड़ना, बाणी दे नाल जुड़ना, बाणी तो दूर नहीं होना। सतगुरु जी ने गुरसिੱਖੀ बख्शी, शब्द गुरु दे नाल जोड़िया। ते राजा फतेह चंद मैणी पंडित सिवदत्त जी जिहड़े गुरु चरणों में बैठे ने कहण लगे, पंडित जी तुसीं भी सतगुरु जी के कोलों आग्या लै लो, चल गया तुसीं भी मंग लो गुरु जी के कोलों, आपां वापस जाना है। ते पंडित सिवदत्त जी कहण लगे, मैं जाण वास्ते नहीं आया, मैं तो समान वास्ते आया, हुण मैं वापस नहीं जावांगा, मैं तो गुरु चरणों के विच ही रहांगा। और सच है, पुरब वाले दिन ही पंडित सिवदत्त जी जिन्हों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते सन बाबा जी झात, वो गुरु चरणों के विच ही समा गए, अकाल चलाना कर गए। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने उस बाबा जी का अपने हथी संस्कार किया। सो गुरु कृपा करे महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का आपां ये पावन प्रकाश पुरब मना रहे हैं। साडी भी प्रीत बाणी गुरु के नाल बन आवे, जो सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने वचन किए सन भाई जेड़ा परमात्मा नूं मिलना चाहता है वो गुरबाणी दी विचार गुरु वचन अनुसार चले। अज लोड़ है सानू शब्द गुरु बाणी गुरु के चरणों नाल जुड़दी, लोड़ है रहत रहत दे विच परपक्क होण दी, भाव गुरु वाले बनदी, अमृत छक के गुरु वाले बणीए। सतगुरु महाराज जी ने सानू इन्ना वड्डा मान बख्शिश किया है। खालसा जिहड़ा साजे आए, जिहड़ा नवां पंथ का प्रचार किया, जिस दी नींह उस पंथ दी मारिया सिखा जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, उसे पंथ दी गुरु नानक दे 10वें स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने ये सारा ही जिहड़ा जो चरण पौल उन्होंने खंडे पौल दे विच तब्दील करके और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने चरनी लाया ते ये भजन किया, पियो पौल खंड धार होए जनो सहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा बरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ऐसा गुरु संसार में नहीं वेखना, गुरु भी होवे ते चेला भी होवे। पंजां प्यारियां नूं अमृत दी दात दे के उन्हां दे सीस लैके प्यार पर प्यार करके सिंह सजा के उन्हां पासों फिर हाथ जोड़ के कहना कि हुण मैनूं भी अमृत दी दात बख्शो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी साडे ते भी किरपा करो। असीं आप जी का पावन प्रकाश पुरब मना रहे हैं, तू सानू इन्ना मान दिता है, असीं इस मान नूं इस संसार दे विच होर ਵਧਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ फौज पर
प्रगटे ओ खालसा परमात्मा की मौज। क्योंकि अकाल पुरख परमात्मा ने सुत किया गुरु गोबिंद सिंह जी को कि तू मेरा पुत्र है, ते पुत्र नूं सहारा हुंदा है पिता का। इसे वास्ते बाला प्रीत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा ठीक है, पर तुसी मेरे अंग संग होगे। अकाल पुरख परमात्मा आप अंग संग होके गुरु साहब जी महाराज जी ने जिवें जिवें उन्हां सतगुरां ने वचन उपदेश अकाल पुरख दे कीते उस अनुसार ये सानू ऐसा अमृत की दात दे के ऐसा मान बख्शिश किया है कि रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत बिना ना सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे। रहत अमृत छक के रहत बहन दे विच परपक होइए, गुरु दीआं खुशियां प्राप्त तां होणगीआं। सतगुर साडे अंग संग होणगे। सतगुर जी दूर नहीं है, सदीवी बाणी गुरु शब्द गुरु साडे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। जो असी गुरु का ओट आसरा लवांगे ना, अज का जिहड़ा अमृत वेले का पावन मुख वाक है, किड्डा वड्डा विश्वास भरोसा है। जे भरोसा नहीं है तो फिर परमात्मा किवें जा जाएगा। वचन है घर बाहर तेरा परवासा, तू जग कै है संग। जन कौन है? नाम जपण वाला सेवक। तू अपने सेवक के सदा ही संग रहिंदा है। मैनू तेरा ही घर दे विच भी बाहर भी विश्वास है, परवासा भरोसा है। तू जग के है संग के मेरा मालिक मेरे अंग संग है। कर किरपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। मेरे मालिक प्रभु जी मेरे ते कृपा कर, बख्शिश कर, मैं तेरा नाम जपता रहा। हरि परमात्मा तेरे रंग विच रंगिया रहा। जन को प्रभ अपने का ताण। जन परमात्मा के सेवक नूं अपने मालिक का बल है, मालिक का आसरा सहारा है। जो तू करे करावे स्वामी, सा मसलत परवान। जो तू करना है, जो तू कराउंदा है, वही हुंदा है। मैनूं वही चंगा लगता है। इस वास्ते सतगुरु महाराज जी ने पाए हुए ऐसे पावन उपदेश सिक्ख्या नूं दृढ़ करिए। बाणी गुरु, गुरु बाणी है, बाणी अनुसार अपना जीवन बनाइए। सतगुर की जिसमो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ये बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बहुत सारे पावन वचन आप पढ़ते सुनते हैं, सानू ऐसा विश्वास भरोसा पूरा गुरु ही दे सकता है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं दे सकता। गुरु जी ने सानू शब्द गुरु बाणी गुरु के जोड़ जोड़िया है। इस वास्ते गुर पूरा भेटियो बड़ भागी, मने पया परगासा। कोई ना पहुँचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। अपने सतगुर कै बलहारै, आगे सुख पासे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। जिथे असी गए घरां दे विच जो मालिक ने दत्ते ने, उन्हां विच रह रहे हैं, उहदे भी बाणी पढ़िए। बाणी पढ़दियां फिर अपने हिरदे घर दे विच भी आत्मक आनंद की प्राप्ति हो जाए। सो समा समाप्त है। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। समूह प्रबंधक साहिबाना का, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जो दास बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, सरदार गुरमीत सिंह जी, जो बहुत प्यार दिंदे ने। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब लगभग 6 साल अमृत वेले की सेवा करने का सुभाग समा मिलिया। ग्रंथी की सेवा करते रहे। ये गुरु प्यारे सरदारू गुरसिख सरदार गुरमीत सिंह जी होर इन्हों के नाल साथी सन। इन्हों ने निगाह प्रति अमृत वेले हाजिरी भरनी, बड़ा इन्हों प्रेम स्नेह बन गया। इस तो बाद सरदार कश्मीर सिंह जी बहुत प्यार देंदे ने, सारी संगत। सो सतगुरु महाराज कृपा करन। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਜਤਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सकत